Hello everyone. In this video, we will learn about the concept of investment. What is investment? So investment, this refers to the change in the capital stock of a producer during an accounting year. यानी कि किसी भी प्रोड्यूसर के पास जो भी कैपिटल स्टॉक होता है और उस कैपिटल स्टॉक में एक साल में यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट refers to the change in capital stock of a producer during an accounting year. ठीक है, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी हमारा उसका कैपिटल स्टॉक चेंज होगा उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन, that is what we call the fixed investment, and the other is that is what we call the inventory investment. Because at a time every producer has two types of stocks with him. One, that is fixed capital stock that include his plant and machinery, tools, and inventory stock that include the raw material stock of semi-finished goods as well as the stock of finished goods. So that all come in inventory investment, right? So first of all, fixed investment. What is fixed investment? This refers to the change in stock of fixed capital of a producer during an accounting year. That means if we suppose that a producer is having 5 machines at the beginning of an accounting year, say 2024, 2025. Accounting year begins on 1st of April 2024, and on that day, let us suppose the producer has 5 machines with him in his production unit. At the end of the accounting year, that means on 31st of March 2025, the producer is having 8 machines in his production unit. That means during the period of this one accounting year, there is a change in the number of machines in his production unit. That is of 3 machines. That is what we call the fixed investment. Machines and tools, they are called the fixed investment or fixed capital. Why? Because they can be used again and again for many years.
ठीक है, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं कई सालों तक, ठीक है। सो फिक्स्ड investment, this is what you can say, the stock of fixed capital at the end of an accounting year minus stock of fixed capital at the beginning of an accounting year ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, this increases the production capacity of any production unit. भाई आपके पास पहले 5 मशीन से, अब ऑब्वियसली जब आपके पास 8 मशीन हैं एज अ प्रोड्यूसर, तो दैट मीन्स कि आपके जो प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं it leads to an increase in production capacity से क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होती है तो इससे हमारा रिलेटेड क्या होता है? आपका आउटपुट इंक्रीज होता है। Increase in production capacity, right? This leads to what? Increase in output, increase in total output. अब जब हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, टोटल आउटपुट जब हमारा इंक्रीज होगा, तो this leads to an increase in the total output, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर हमारा टोटल आउटपुट, जब एक इंडिविजुअल यूनिट का हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज हुआ, तो अगर हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर हम ये मानकर चलें कि 1000 हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और उन सभी 1000 जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनका आउटपुट अगर इंक्रीज होता है, तो हमारा जो टोटल आउटपुट है इकोनॉमी का वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज इन टोटल आउटपुट लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ, यानी कि इससे हमारा क्या होता है? जीडीपी ग्रो होता है, इंक्रीज होता है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स द producers are able to fulfill the potential या हम कह सकते हैं फ्यूचर डिमांड, पोटेंशियल डिमांड इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो हमारा पोटेंशियल डिमांड होती है उसको भी वो इंक्रीज कर सकता है।
ठीक है, उसको वो पूरा कर सकता है, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। So, what is inventory investment? We'll be discussing in this part basically how to define or what is inventory investment. Inventory investment. So, inventory investment, it refers to the change in stock of inventory, with the producer प्रोड्यूसर के पास जो भी इन्वेंट्री स्टॉक होता है। अब ये इन्वेंट्री स्टॉक में इन्वेंट्री स्टॉक कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, एंड थर्ड इज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री स्टॉक consist of 3 different components. One is stock of raw material, second is stock of semi-finished goods, and the third is stock of finished goods. Basically, we consider here the stock of raw material and stock of finished goods to discuss the importance of inventory investment. यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस या हम कहें इसका इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने के लिए वी आर टेकिंग 2 ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। वन इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? इंक्रीज इन stock of raw material यानी कि रॉ मटेरियल का अगर इन्वेंट्री स्टॉक इंक्रीज होता है, ठीक है, देन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल help the producer in 2 ways. One, यहां पर जो हमारा प्रोड्यूसर होगा उसको डे टू डे रॉ मटेरियल को परचेज नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। और इस तरह से वो मार्केट के अंदर जो भी अनसर्टेनिटीज क्रिएट होती हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उससे वो बच सकता है, ठीक है। तो वन, प्रोड्यूसर would not require to purchase raw material on day to day basis, and this saves him from uncertainties
in the market. And secondly, दूसरा फायदा क्या मिलता है? The producer will be able to get the uninterrupted supply of raw material for production. Right? So producer would get an uninterrupted supply of raw material for production. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगा, किसका? रॉ मटेरियल। अब हम बात करते हैं फिनिश गुड्स के स्टॉक। ठीक है, सो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ finished goods would help the producer to fulfill or to meet the potential demand in the market. ठीक है, यानी कि जो मार्केट के अंदर जो भी हमारा पोटेंशियल डिमांड है उसको पूरा करने में उसको आसानी। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना है कि एवरी टाइम द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इंक्रीज इन फिनिश गुड्स इज नॉट ऑलवेज डिजायर्ड। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज डिजायर्ड जो हमारा स्टॉक होता है वो हमारा क्या होता है? दैट इज व्हाट यू कैन से द प्लान। ठीक है, एंड इट ऑलवेज हेल्प द प्रोड्यूसर्स टू मीट द नीड्स, द पोटेंशियल डिमांड इन द मार्केट। लेकिन दूसरा होता है हमारा अनडिजायर्ड, ये हमारा क्या होता है? अनप्लैन्ड होता है। इट ऑलवेज लीड्स टू a loss to a producer. Why a loss? Because what happens कि हमारा सपोज करो कि प्रोड्यूसर ने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो 10 यूनिट्स को सेल कर पाएगा और 10 यूनिट्स का उसने अपने पास स्टॉक किया, बट ही वॉज एबल टू सेल ओनली 8. ठीक है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल अ डिक्लाइन इन द मार्केट, एंड दिस इज व्हाट अनडिजायर्ड और अनप्लैन्ड। तो अनप्लैन्ड या अनडिजायर्ड जो भी हमारा स्टॉक होता है वो हमेशा लॉस को शो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी जस्ट गोइंग टू डिस्कस फर्दर this concept to the gross investment and net investment. Right? Till then, just go through this video, learn this concept. This is very important concept to know about, or for the computation of national income. Thank you. Keep watching my channel, Incredible Scholars. Subscribe my channel, share my channel, and like my channel. Thank you.